today we will start with the mechanism of drug absorption. We'll get the effect of drug when it will come in the systemic circulation. That means after coming in systemic circulation only, it will get distributed in the body, it will reach to the particular site and it will show its pharmacological effect. In turn, we will get the therapeutic benefit or clinical benefit. That means absorption is the first step. Unless there will be no absorption, there will be no effect or pharmacological effect of the drug. There are different mechanisms of the drug: passive diffusion, co-transportation, passivated transportation, ionic diffusion, ion pair transportation, and endocytosis process. Passive diffusion, this is the process of absorption in which maximum drugs go. That means maximum drugs are absorbed by the passive diffusion process. This is also known as the non-ionic diffusion. Why it is known as the non-ionic diffusion? Because we can easily say that drug, basically the absorption is dependent on two things: whether it is polar or lipophilic in nature, what is its nature, ionized or unionized. That means जो ionization है, degree of ionization बोलिए, चाहे वो ionized form में है या unionized form में, ये चीज और ड्रग की polarity जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो फॉलो करेगा, which absorption pattern or which mechanism of the absorption will be followed. This is divided or governed by basically two factors of the drug. पहला है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आप बोल सकते हैं, दूसरा आप बोल सकते हैं पोलैरिटी ऑफ द ड्रग. इसी के बिहाफ पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन का वे है, जो मैकेनिज्म है, दैट वैरीज. ठीक है. पैसिव डिफ्यूजन के केस में वो ड्रग्स जो लाइपोफिलिक है और वो ड्रग्स जो आपके नॉन आयनिक है, दैट मीन्स नॉन आयोनिक या अनआयनाइज्ड. नॉन आयनिक का मतलब आप समझ रहे हो, आयोनाइज्ड नॉन आयनिक. नॉन आयनिक मतलब उससे कोई चार्जेस नहीं है. तो जो अनआयनाइज्ड कंपाउंड्स होंगे, जो अनआयनाइज्ड ड्रग्स होंगे, जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होंगे, दे गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस. ठीक है. मैक्सिमम ड्रग्स जो है 90% ड्रग्स जो है दे एग्जिस्ट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड विद गुड लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज. तो हमने बोला जो भी ड्रग्स ये दो प्रॉपर्टीज बेयर करेंगी, आपका अनआयनाइज्ड पार्ट दैट मींस अनआयनाइजेशन और आपका जो लाइपोफिलिसिटी है, अगर आपके ड्रग में ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली जो ड्रग है इट विल फॉलो द डिफ्यूजन प्रोसेस. इट विल फॉलो द डिफ्यूजन. जो डिफ्यूजन प्रोसेस है अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो है इट इज from higher to lower concentration or lower to higher. If it is from higher to lower concentration, then it is known as the passive diffusion process. ओके. तो हमने बोला पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब है कि मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है. एक्सक्यूज मी. स्पेशली वो ड्रग्स जो आपके अनआयनाइज्ड और लाइपोफिलिक कैपेबिलिटीज रख रहे हैं, उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन आपके पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. Definitely, since movement is from higher to lower concentration, no energy is required. This particular diffusion process is governed. Yeah, it can be easily explained by the fixed law of diffusion. dq by dt is equal to आपका dak m by w divided by s c git minus c. Already explained क्या है. dq by dt means rate of diffusion. It is directly proportional to the diffusion coefficient. आपका surface area of the membrane, partition coefficient of the drug, thickness of the membrane, and concentration gradient between the GIT and that blood vessel जहाँ पे आपका ड्रग एब्सॉर्ब हो रहा है. ये सारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपके इसके पैरेलल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अगर आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा होगा, डेफिनेटली जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा. थिकनेस अगर आपका मेम्ब्रेन का कम होगा, आपका डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा. सॉरी. ठीक है. नेक्स्ट हमने बोला कि आपका जो ड्रग है, स्पेशली आपके वो ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट
100 डाल्टन से 400 डाल्टन तक है। ऐसे ड्रग्स आपके जो है पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग होना चाहिए और आपके पास पर्टिकुलर ड्रग के पास लाइपोफिलिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बोला ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसे फिक्स लॉ ने एक्सप्लेन किया, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, if we see all these things तो ये हमारे कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। आपका जो सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। हमने बोला जो लाइपोफिलिसिटी या फिर आपका बोलिए जो पार्टीशन कोएफिशिएंट नेचर ऑफ द ड्रग है कि आपका ड्रग जो है मेम्ब्रेन लाइपोफिलिक कितना है, आपका हाइड्रोफिलिक कितना है, ये जो पार्टीशनिंग बिहेवियर है, दिस इज अगेन अ फिक्स फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ड्रग। हमने बोला जो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है, इट इज फिक्स। सो ऑल दिस वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है एक तरह से फिक्स हो जाती है और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम बोल रहे हैं आपका पी। ओके, तो हमने बोला डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पी सी जी आई टी माइनस सी। तो अगर हम इस सी को फर्दर इस पर्टिकुलर पी को इलॉबरेट करते हैं, कैन बी इलॉबरेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस, बट दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये इतने सारे कांस्टेंट वैल्यूज को हम अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट करने से अच्छा हम सिंगल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इट कुड बी एक्सप्लेन्ड, इट कुड बी रिटन इन टर्म ऑफ पी। तो हमने बोला डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पी सी जी आई टी माइनस सी। दैट मीन्स द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट will decide the movement या passive diffusion of the drug. And from this equation, we can easily say that rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient. और ये सी जी आई टी माइनस सी को अगर हम फर्दर करें तो मैंने आपको ये भी लास्ट टाइम बताया था कि जब हम ड्रग की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो तब तक चलता है जब तक कि दोनों साइड इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, अगर हम बॉडी की बात करें तो यहाँ पर कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आता है। क्यों? जैसे ही स्टमक से ड्रग आपका जो है ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड में जाएगा, इमीडिएटली दैट ब्लड विल टेक ऑफ दैट ड्रग एंड फ्रेश ब्लड जो है वहां पे आ जाएगा। फ्रेश ब्लड फिर से आपका नया ड्रग लेगा, वहां से डिफ्यूज होगा, कैरी करेगा, डिफरेंट पार्ट्स में लेके चला जाएगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी में इक्विलिब्रियम प्रोसेस कभी भी अटेन नहीं होता है। दैट इज वाई आपका जो भी ड्रग है वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जाता है और सी जी आई टी माइनस सी जिसे हम बोल रहे हैं, दिस कंसंट्रेशन ऑलवेज एग्जिस्ट एट हायर लेवल। ये कभी भी इसका लेवल इसके लेवल के इक्वल नहीं हो पाता है। उसका रीजन है जो भी ड्रग हमारे ब्लड में जा रहा है वो हमारा ड्रग इमीडिएटली वहां से मूव कर गया, सैचुरेशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप होने की कंडीशन आती ही नहीं है। So this equation can be further simplified. dq by dt is equal to p c g I t minus c में से c हटा दीजिए। That means dq by dt is directly proportional to the c g I t। और अगर आप ये बोलते हैं तो उस केस में आप क्या बोलेंगे? dq by dt directly proportional to the c g I t। If you see that equation shows that passive diffusion is the first order kinetic। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है आपका पैसिव डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट हमने बोला फोर ट्रांसपोर्ट। फोर ट्रांसपोर्ट मैंने बोला आपकी दो चीजें डिसाइड करती कि ड्रग का कौन सा मैकेनिज्म होगा, किस मैकेनिज्म से ड्रग एब्सॉर्ब होगी। वेरियस मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल, बट दो चीजें डिसाइड करेंगी आपका ड्रग की पोलैरिटी क्या है, आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या है कंपाउंड का, और हमने बोला वेदर इट इज आयोनिक और अनआयोनिक फॉर्म। वो तीन चीजें, ओवरऑल थ्री थिंग्स विल डिसाइड कि आपका जो है अल्टीमेटली विच मेथड विल बी ऑप्टेड। ओके, विच मैकेनिज्म विल बी ऑप्टेड। हमने बोला नेक्स्ट इज कोर ट्रांसपोर्ट। कोर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जब आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं इट इज अ बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। बाइफॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में मैंने आपको बोला था जो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांस सेल्यूलर होते हैं। ट्रांस सेल्यूलर नहीं कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन कहेंगे। दैट मीन्स पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एक्स्ट्रा जो मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, जो इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, पूरा उसको क्रॉस करते हुए हमारा जो प्रोटीन है वो जाता है, इट फॉर्म्स द कोर, इट फॉर्म्स द चैनल।
एंड हियर वी कैन सी, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ये जो प्रोटीन है ये एक्स्ट्रा सेल्युलर जो मेम्ब्रेन है वहां से जो है कंटिन्यूसली एक्सटेंड होता है और ये जो इंट्रा सेल्युलर मेम्ब्रेन है यहाँ तक एक्सटेंशन उसका रहता है। एंड ये जो प्रोटीन है इसके बीच में जो स्पेस है, this forms the pore. So drug जो है it goes through this pore, and if this is acting then we, it is called, if this type of transportation process is there then we say the pore transportation. Alternative names for the pore transportation is convective, bulk और filtration. हम उसे filtration process भी कह सकते हैं, bulk भी कह सकते हैं, convective transport भी कह सकते हैं। Normally which type of drugs undergo the pore transport? हमने बोला डेफिनेटली पोर की बात कर रहे हैं तो उसका साइज बहुत कम होगा, पोर का साइज कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, डेफिनेटली उसका पोर साइज जो है इट विल बी वेरी लेस। तो हमने बोला वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 डाल्टन है वो ड्रग्स जो है हमारे इजिली पोर ट्रांसपोर्टेशन से मूव कर लेते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, देखिए हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हम करें, जो ड्रग्स हाइड्रोफिलिक है, जिन ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है 100 डाल्टन से कम है, वेदर इट इज आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड कुछ भी हो, लेकिन अगर वो ड्रग आपके जो है लेस मॉलिक्यूलर वेट वाली है और हमने बोला कि वो आयनाइज्ड है चाहे वो अनआयोनाइज्ड है, बट इफ इट इज इन पोलर नेचर तो डेफिनेटली वो ड्रग जो है आपके पोर ट्रांसपोर्टेशन से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो पोर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर साइज इज इंपॉर्टेंट, और मॉलिक्यूलर साइज जो है वो 100 डाल्टन से कम होना चाहिए। आपका अगर ड्रग जो है वो पोलर है तो वो, और अगर उसका साइज कम है तो डेफिनेटली इट विल गेट एब्सॉर्ब बाय द पोर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नो डाउट सम एक्सेप्शंस आर देयर, मैंने जैसे आपके उस केस में भी बताया था पैसिव डिफ्यूजन के केस में कि कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो है, उस केस में मैंने जब आपका पैसिव डिफ्यूजन बताया था दैट टाइम एक्सप्लेन कि अप टू 400 डाल्टन जो है ड्रग्स जो है वो आपके पैसिव डिफ्यूजन से जा सकते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन केस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, जहां पे देखा गया है कि 1200 डाल्टन तक के भी मटेरियल जो है, जो ड्रग्स है वो क्रॉस हुए हैं। वहां पर जो रीजन था पैसिव डिफ्यूजन के केस में 1200 डाल्टन वाला मटेरियल क्यों क्रॉस हो गया, एक एजम्पशन लिया गया, हो सकता है वो कंपाउंड हमारा लीनियर कंपाउंड रहा हो जिसकी वजह से वो क्रॉस कर गया। इन सेम वे पोर ट्रांसपोर्टेशन में भी एक्सेप्शंस हैं, जहां पर ड्रग जो है मॉलिक्यूलर वेट 400 डाल्टन है एंड इट इज गेटिंग एब्सॉर्ब बाय द फिल्ट्रेशन। तो उसका रीजन अगेन हो सकता है कि ड्रग जो है वो आपके सेम फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने बोला अगर ड्रग आपका लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 400 डाल्टन, then also there is possibility it can get absorbed by the pore transportation. Pore transportation means आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो स्पेस है वहां से आपका जो ड्रग है वो क्रॉस करता है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, क्यों वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक डिफरेंस। ठीक है, तो जो ऑस्मोटिक डिफरेंस होता है या जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इसके वजह से आपका ड्रग जो है वो ड्रग्स जो आपके पोलर है, वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से कम है, वो ड्रग्स वेदर इट इज आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड कोई भी क्वालिटी रखे, ऐसे ड्रग्स जो है पोर ट्रांसपोर्टेशन से एब्सॉर्ब होते हैं। और द मैकेनिज्म जो पोर ट्रांसपोर्टेशन में होता है इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द कन्वेक्टिव, बल्क और फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो हमने बोला हम जो है इस प्रोसेस को कन्वेक्टिव, बल्क और फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या ऑस्मोटिक डिफरेंस है, अल्टीमेटली वाटर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स कहने का मतलब है वाटर का जो डिफरेंस है that will result in, that will help in movement of solute from outer side of the membrane to the inner side of the membrane. Okay, so this is pore transportation. Pore transportation में केवल 100 डाल्टन तक के ही ड्रग एब्सॉर्ब होते हैं। exceptions are there but very few examples are there in exceptional cases. नेक्स्ट हमने बोला कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नो डाउट हमने बोला आपका पैसिव डिफ्यूजन में नॉन आयनिक ड्रग्स जो है वो एब्सॉर्ब होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन में जो है वो आपके जो ड्रग्स है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, दैट मींस लाइपोफिलिक इन नेचर होते हैं। बट द ड्रग्स
which are hydrophilic in nature और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से 400 डाल्टन के बीच में है, वो ड्रग्स कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? दैट मींस मेरी बात समझिए, अगर वो 100 डाल्टन तक के हैं तो चाहे वो लाइपोफिलिक हो, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो, चाहे वो आयोनाइज्ड हो, चाहे वो अनआयोनाइज्ड हो, लेकिन 100 डाल्टन का मतलब है उसकी पहली प्रायोरिटी है कोर ट्रांसपोर्टेशन। हमने बोला मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हुआ, हमने बोला अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज 100 टू 400 डाल्टन, तो अब किस मैकेनिज्म से ड्रग एब्जॉर्ब होगा? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कि ड्रग आपका जो है किस नेचर का है, पोलैरिटी है, नॉन पोलैरिटी है, आयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड है। तो हमने बोला अगेन यहाँ पे 4 कैटेगरीज हो गई हैं। हमने बोला अगर हमारा ड्रग जो है वो 100 से 400 डाल्टन है एंड इफ इट इज अनआयोनाइज्ड और लाइपोफिलिक है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो लाइपो आपका जो है पैसिव डिस्क्रिप्शन में जाएगा। लेकिन अगर ड्रग हमारा जो है वो पोलर है, मॉलिक्यूलर वेट उसका 100 से 400 डाल्टन है और आपका ड्रग जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी बात समझ रहे? ड्रग इज एग्जिस्टिंग इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, पहली चीज। मैंने दूसरी चीज बोला कि ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 से 400 डाल्टन है। तीसरी चीज मैंने बोला कि ड्रग जो है वो पोलर है, तो 100 to 400 Dalton, non-ionized in nature, and if the drug is polar in nature, तो हमने बोला डेफिनेटली दैट टाइप ऑफ द ड्रग जो है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे कि 100 से 400 डाल्टन के जो ड्रग्स है और स्पेशली जो पोलर ड्रग्स है, जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होंगे? दे विल गेट एब्जॉर्ब बाय द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो कैरियर किसके लिए रिक्वायर्ड है? डेफिनेटली वो मटेरियल जिसकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है क्रॉस करने की। तो हमने बोला लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, बट ड्रग्स जो आपके पोलर ड्रग्स हैं उनके लिए इट इज नॉट इजी टास्क टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। So to cross the membrane, they will need some carriers, they will need some helpers, ताकि उन helpers के help से जो material है, जो polar material है, they can easily cross to the another side of the membrane. हमने बोला कि नॉर्मली जो कैरियर्स है दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। जो कैरियर्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं एक तरह से, तो ये प्रोटीन्स जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और ये प्रोटीन्स जो है दे आर द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन ओनली। क्योंकि जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था कुछ प्रोटीन्स जो है बाहर की तरफ होते हैं, कुछ अंदर इंटरसेडेड होते हैं। तो हमने बोला जो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके सरफेस पे होते हैं अल्टीमेटली दे आर द कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द ड्रग which is polar in nature, whose molecular weight is from 100 to 400 Dalton, and it is an unionized form. ऐसे drugs क्या करते हैं? They get company of that carrier, या it forms the reversible type of bond या फिर non covalent bond form कर लेते हैं और आपका जो मटेरियल है, मटेरियल दैट मीन्स ड्रग, मटेरियल और आपका जो कैरियर है वो अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। और ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड यानी रिवर्सिबल बॉन्ड बनने के बाद अब मटेरियल जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एक तरह से फॉर्म कर चुका है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से आप बोल सकते हो कि उसे कैरियर मिल गया है, इस कैरियर के हेल्प से जो है मेम्ब्रेन के दूसरे एंड पे इट विल ट्रांसवर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इट विल रीच टू द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एज इट रीच टू द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सल्यूट मॉलिक्यूल जो आपके कैरियर के साथ अटैच हुई थी थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, वो सल्यूट मॉलिक्यूल वहां से डिटैच हो जाएगा और अल्टीमेटली तो आपका कैरियर जो है इट विल अगेन रीच टू द सेम पॉइंट जहां से वो आया था। दैट मीन्स कैरियर विल रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, तो हमने बोला कैरियर किसके लिए रिक्वायर्ड है? ऐसी चीजों के लिए जिसकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशली जिनके लेग्स की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं? दे यूज द व्हील चेयर। कहीं ना कहीं उन्हें कैरियर्स की जरूरत है क्योंकि उनकी खुद की टांगे काम नहीं कर रही। सेम वे अगर ड्रग आपका लाइपोफिलिक नहीं है, पोलर ड्रग है, तो पोलर ड्रग जो है वो कैसे एब्सॉर्ब होगा? उसके लिए नॉर्मल सिस्टम तो एक्सिस्टिंग नहीं है, मेम्ब्रेन उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल यूज द कैरियर्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द व्हिच इज द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। उन कैरियर्स के साथ वो क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट दैट बॉन्ड विल बी द टेम्परेरी बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। इस नॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से एक कॉम्प्लेक्स रेडी होगा। This complex will reach to the another side of the membrane. The drug will be
released from there, it will leave that particular carrier molecule, and carrier molecule it will come to the its original place. ठीक है, तो हमने बोला दिस इज द हाउ आपका जो है आपके पोलर ड्रग्स जो है कैरियर ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं. देयर आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन. जैसे हमने बोला स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है. स्ट्रक्चर स्पेसिफिक कहने का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो कैरियर है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है, जो जो कैरियर होता है वो एक तरह से रिसेप्टर ही है. उस पर्टिकुलर कैरियर पे जो रिसेप्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं. दोनों का लॉक एंड की जैसा कंसेप्ट है. जैसे एक चाबी एक ताले में फिट होती है, सेम वे हमने बोला कि स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी रहती है. एक सल्यूट जो है, एक कंपोनेंट जो है वो आपके एक ही तरह के जो है आपके कैरियर के साथ इंटरेक्ट हो सकती है. अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं यही रीजन है कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज अ स्ट्रक्चर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंट्रैक्शन. ठीक है, तो हमने बोला ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है इट इज अ स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन. और इसके लिए स्पेशल कैरियर्स की ही रिक्वायर्ड होते हैं. वो स्पेशल कैरियर्स जो है दे हैव द स्पेशल एफिनिटी फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ड्रग. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी. दैट मीन्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट करता है, वो अपने सुटेबल मटेरियल को ही अपने साथ अटैच होने देता है और उसको ही वो कैरी करके ले जाता है. ओके, नेक्स्ट इज false nutrients are absorbed. false nutrients डेफिनेटली हमने बोला स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी रखती है. तो हमने बोला जैसे यूरेसिल है, तो ये जो है ये हमारे सिंपल जो है बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं और ये हमारे एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, जो आपके यूरेसिल है, जो इस तरह के पिरिमिडीन है, पैरिडीन है, ये जो आपके हैं ये सब जो एब्जॉर्ब होते हैं ये आपके कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन से होते हैं. और अगर इसी एनालॉगस हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ब्रोमोयूरेसिल करते हैं, फ्लोरोयूरेसिल करते हैं, तो ये कंपाउंड्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है इट विल रिजेंबल टू द यूरेसिल. और यूरेसिल क्या है, वो हमारी बॉडी का कंपोनेंट है. तो हमने बोला वो फॉल्स रिकॉग्निशन की वजह से जो है आपका इंस्टेड ऑफ यूरेसिल जो है वो ब्रोमोयूरेसिल को कैरी करके लेके चला जाता है सेल में. और सेल जब उसको यूटिलाइज करता है अपने फॉर्मेशन में तो डेफिनेटली रियल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उस तरह के सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. तो हमने क्या बोला कि डेफिनेटली जो कैंसरस सेल्स है इनका ट्रीटमेंट हम इस कंसेप्ट पे कर सकते हैं. तो हमने बोला नो डाउट दे आर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, बट हम स्ट्रक्चर स्पेसिफिक का बेनिफिट लेते हुए इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कैरिंग द फॉल्स न्यूट्रिएंट. थर्ड हमने बोला कैरियर्स आर लिमिटेड. कैरियर्स आर लिमिटेड इन द सेंस आपके जो कैरियर्स है वो आपके लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड होते हैं. आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे नो डाउट मटेरियल जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा. उसका रीजन है क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ कैरियर्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, जो आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं वो आपके लिमिटेड है. सो हमने बोला कैरियर्स आर लिमिटेड. डेफिनेटली यहाँ पर कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ बाइंडिंग जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, कंपटीशन एग्जिस्ट कर सकता है आपके कैरियर्स के लिए. नेक्स्ट हमने बोला कैपेसिटी लिमिटेड. कैपेसिटी लिमिटेड इन द सेंस काम करना. ठीक है, कैपेसिटी मीन्स उसकी काम करने की क्षमता. तो डेफिनेटली हमने बोला जो कैपेसिटी लिमिटेड है इसका कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल हुआ तो एक कैरियर लेके गया, हमने दो मॉलिक्यूल्स भेजे, दो कैरियर्स इन्वॉल्व हो गए, हमने तीन मॉलिक्यूल्स भेजे, तीन कैरियर्स इन्वॉल्व हो गए. इफ सपोज देयर आर ओनली 5 कैरियर्स तो केवल 5 मॉलिक्यूल तक तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, आपका कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं फिर आपके कोई भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा. क्यों, सारे के सारे कैरियर्स जो है वो ब्लॉक्ड है. तो हम बोल सकते हैं इट इज अ कैपेसिटी मीडिएटेड. कैपेसिटी मीडिएटेड मतलब आप समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे नो डाउट एब्जॉर्प्शन विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. लेकिन आप और अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो कैरियर्स हैं इट गेट्स सैचुरेटेड, और जैसे ही आपके कैरियर्स जो है वो सैचुरेट हो जाएंगे आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करने लगेगा. दैट मीन्स कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, जबकि इन केस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन इट फॉलोज प्योरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स.
In case of carrier mediated transportation, it follows the mixed order kinetics. Okay. Next हमने बोला जो carriers हैं, they are found in absorption window. Absorption window in the sense एक पर्टिकुलर साइट पे ही ये कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके इसोफेगस में, आपके स्टमक में, आपके हर पार्ट में अवेलेबल है. जो आपके कैरियर्स है दे आर अवेलेबल ओनली इन द इंटेस्टाइनल जोन. जो इंटेस्टाइन है वहीं पर आपके कैरियर्स है. दैट इज व्हाई दे आर वेरी इन लिमिटेड अमाउंट. और उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे ये कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन विंडो. दैट मीन्स these types of the drugs which are polar in nature, ऐसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में नहीं होता है. ऐसे ड्रग्स के लिए वी नीड द कैरियर्स. एंड फॉर कैरियर्स जो है ये कैरियर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? एब्जॉर्प्शन विंडो. दैट मीन्स इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया ओनली दे आर फाउंड. नेक्स्ट हमने बोला कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. यानी कैरियर तो चाहिए लेकिन मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन या मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. आप मेरी बात समझ रहे हैं? पोलर ड्रग्स हैं तो उसके लिए भी नीड द कैरियर. नॉन पोलर ड्रग्स के लिए कोई कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि उसकी खुद की कैपेबिलिटी है कि वो इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकल सकता है. लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इट इज पोलर इन नेचर. तो हमने बोला पोलैरिटी के वजह से ड्रग जो है इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब, वो नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके लिए कैरियर रिक्वायर्ड होगा. बट मूवमेंट ऑफ ड्रग जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में हो रहा है या लोअर से हायर में हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अगर पोलर ड्रग अनआयनाइज्ड ड्रग है और कैरियर मीडिएटेड है एंड इट्स मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटी दी गई है उसको सिर्फ फैसिलिटी दी गई है. यानी मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है, सिर्फ उसे फैसिलिटी क्या दी गई है? उसे कैरियर प्रोवाइड कर दिया. अदरवाइज जो सिस्टम है इट इज इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी इट इज नॉट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन. जो मूवमेंट है पोलर ड्रग का इट इज इन फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ द ड्रग इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम किसे बोलते हैं? इट इज अ डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन. डाउन हिल मतलब आपका मूवमेंट जो है इट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होगी. बट यहाँ पे जो ड्रग है वो पोलर ड्रग होता है, यहाँ पे जो ड्रग है वो आयनाइज्ड ड्रग होता है और ऐसे ड्रग्स के लिए वी नीड द कैरियर सिस्टम. Definitely this is the downhill transportation, so it is the faster process. It is a faster process than simple passive diffusion. क्योंकि सिंपल पैसिव डिफ्यूजन में कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं है तो आपका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. पैसिव डिफ्यूजन भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज मोर फास्टर देन द सिंपल पैसिव डिफ्यूजन. No energy is required as in case of passive diffusion. Since no energy is required, तो आपका ये जो process है it cannot be inhibited by any metabolic poison जो आपके एनर्जी प्रोडक्शन को इंटरफेयर कर रहा है. डेफिनेटली आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है. कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्सीजन का इंटरफेरेंस करेगी वो कहीं ना कहीं एटीपी के जनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. ऐसी चीज जो आपके ऑक्सीजन क्रिएशन में या ऑक्सीजन सप्लाई में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी, ऐसी चीजें जो है वो आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अफेक्ट नहीं कर सकती है लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकती है. ठीक है. तो मेटाबॉलिक पॉइजन्स जो है इट विल नॉट, मेटाबॉलिक पॉइजन्स जो है since they are not interfering the energy production, so definitely it will not affect the facilitated diffusion process also. एग्जाम्पल एंट्री ऑफ ग्लूकोज जैसे आपके आरबीसी में हो रहा है या फिर विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंट्रिंसिक फैक्टर के हेल्प से B1, B2, B12 जो डिफरेंट आपके वाटर सोल्युबल विटामिन से दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम बाय कैरियर्स होंगे. जो इंट्रिंसिक फैक्टर है आपके इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ दैट इंट्रिंसिक फैक्टर ओनली B1, B2, B12 जो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन वाटर सोल्युबल विटामिन दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. तो हमने क्या बोला कि
आपके पैसिव डिफ्यूजन में किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई भी चीज एनर्जी को ब्लॉक करे, एटीपी का प्रोडक्शन बंद करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके एब्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो मूवमेंट है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है, but the drug which is involved is polar in nature and for that drug we need the carrier. That means for its absorption system needs the carrier, तभी उसके बाद वो जो है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है। नेक्स्ट हमने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें अगेन ये क्योंकि आपके कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है तो डेफिनेटली वो ड्रग्स कैरियर किसके लिए चाहिए, सिर्फ पोलर ड्रग्स के लिए चाहिए। तो डेफिनेटली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में वो ड्रग्स आते हैं जो पोलर इन नेचर है। दैट मीन्स जो ड्रग्स आपके पोलर इन नेचर है, वो ड्रग्स जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, ऐसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है थ्रू कैरियर होगा। सिर्फ इधर पर डिफरेंस क्या है, द मूवमेंट ऑफ द ड्रग विल बी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, and since the movement is from lower concentration to the higher concentration, this is known as the uphill transport. Energy is required for this process, so anything which will interfere in the production of ATP molecules, कोई भी ऐसी चीज जो एनर्जी प्रोडक्शन को इंटरफेयर करेगी, definitely will interfere this active process also. So we can say that some of the metabolic poisons like cyanide है, डाइनाइट्रोफिनॉल है, फ्लोराइड है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लैक होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, या फिर हमने बोला कि ये जो पॉइजन्स है, मेटाबॉलिक पॉइजन्स जो है मेटाबॉलिक सिस्टम्स को इंटरफेयर करेंगे, और मेटाबॉलिक सिस्टम्स अगर सेल की इंटरफेयर होगी तो क्या होगा, एटीपी का जनरेशन जो है रिड्यूस हो जाएगा, और एटीपी का जैसे सिस्टम प्रोडक्शन जो है वो कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी खत्म होने लगेगा। दैट मीन्स वो सारी चीजें जो एनर्जी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगी डेफिनेटली विल अफेक्ट द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। ओके, तो हमने बोला लाइक हम बोल सकते हैं जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इसका मूवमेंट जो है ये आपके फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन होता है, और ऐसी चीजों के एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड ऑल दीज मटेरियल्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दे आर नॉट लाइपोफिलिक इन नेचर। तो ऐसे मटेरियल जो है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें कैरियर्स चाहिए, एंड कैरियर्स जो है since it is moving the drug from lower to higher concentration, that is why it is known as the active transportation. Next is ionic diffusion. Ionic diffusion in the sense मैंने आपको बोला ड्रग का एब्जॉर्प्शन तीन चीजें डिसाइड कर रही हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसकी पोलैरिटी क्या कह रही है, उसका आयोनाइजेशन क्या है। हमने बोला अगर ड्रग आपका आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हमारा जो ड्रग है वो हमारा जो है या तो पोलर होगा या तो आपका लाइपोफिलिक होगा, बराबर। तो हमने बोला अगर ड्रग हमारा लाइपोफिलिक इन नेचर है, इफ द ड्रग इज लाइपोफिलिक इन नेचर, नॉन आयोनिक इन नेचर, और हमने तीसरा बोला कि ड्रग जो है सॉरी लाइपोफिलिक इन नेचर और आयोनिक इन नेचर, नॉन आयोनिक, अगर हमारा ड्रग जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लाइपोफिलिक इन नेचर है, तो ऐसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ से होगा। तो डेफिनेटली ऐसे ड्रग्स का जो आयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग्स हैं, ऐसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि आयोनिक डिफ्यूजन फॉलो करेगा या आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद ही समझ सकते हैं कि जब हम आयन पेयर की बात कर रहे हैं दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिक्वायरिंग सम ऑफ द कैरियर, और कैरियर की जरूरत कहाँ पे, आयन पेयर। वो पेयर क्यों बना रहा है, क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है ड्रग की वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दे, तो डेफिनेटली इट विल नीड द कैरियर। आयोनिक कंपाउंड्स जो है इट विल आल्सो नीड द कैरियर, और अगर आयोनिक कंपाउंड्स को कैरियर चाहिए तो उस केस में आयन पेयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दैट मीन्स, और ये क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रहे इस तरह के आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि दे आर पोलर इन नेचर।
So the drugs which are polar in nature as well as they are existing in ionized form, तो ऐसे drugs का absorption किस method से होगा? By ion pair transportation. Okay, but if the drug is lipophilic in nature, if the drug is lipophilic in nature, but it is existing in ionized form, तो डेफिनेटली ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका एक तरह से पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, लेकिन पैसिव डिफ्यूजन मतलब है नॉन आयनिक के लिए, तो डेफिनेटली हम उसे क्या बोलेंगे? आयोनिक डिफ्यूजन. इट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होगा, क्योंकि जो ड्रग है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है. बट यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि आयोनिक है, तो हमने उसे एक नया कैटेगरी में डाल दिया एब्जॉर्प्शन का, आयोनिक डिफ्यूजन. आयोनिक डिफ्यूजन में जो आयनिक कंपाउंड है दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरह से उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है. दीज ड्रग्स हैव गुड लाइपोफिलिसिटी. इसका एब्जॉर्प्शन जो है डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम आयंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली ड्रग्स जो है दे एग्जिस्ट इन कैटायनिक फॉर्म आल्सो, दे एग्जिस्ट इन एनायनिक फॉर्म आल्सो. ओके, तो हमने बोला ड्रग नॉन आयनाइज्ड है तो उसका एब्जॉर्प्शन हमेशा बेस्ट होता है. नेक्स्ट प्रेफरेंस हमेशा जो है एन आयनिक कंपाउंड्स को मिलता है, नेक्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कैटायनिक कंपाउंड्स को मिलता है. ठीक है, तो हमने बोला उसका रीजन क्या है? जो मेम्ब्रेन का आउटर साइड है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, it is positively charged. So definitely if the outer side of the membrane is positively charged, तो वो नेगेटिव चार्ज वाले मटेरियल को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल अलाउ टू ट्रांसफ्यूज, यानी आप बोल सकते हो उसको इजिली वहां से वो मेम्ब्रेन से क्रॉस करने देगा. ठीक है, तो हमने बोला था कंपाउंड्स व्हिच आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म, their absorption will depend on the nature, polar है या lipophilic है. If it is lipophilic, then it will go under the ionic diffusion process. If it is polar, तो हमने बोला वो आपके ड्रग्स जो हैं जो आयनाइज्ड और पोलर है, ऐसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन से होता है. दैट मीन्स जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है आपके जो मेम्ब्रेन में दूसरा आयन प्रेजेंट है. दैट मीन्स जो आपके मेम्ब्रेन है, डेफिनेटली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंडोजीनियस आयंस जिसे हम कहते हैं. दीज एंडोजीनियस आयंस के साथ जो है आपके आयंस जो पोलर आयंस है उनके साथ वो कॉम्प्लेक्सेशन कॉज करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इजिली जो है दूसरे साइड में क्रॉस होकर निकल जाता है. दैट मीन्स हमने बोला पोलर मटेरियल जो है इट ऑल्सो नीड्स द कैरियर, लेकिन यहाँ पे हम कैरियर ना बोल के हम इसे आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन बोलते थे. ठीक है, तो हमने बोला जो भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आफ्टर पेयरिंग, दैट कॉम्प्लेक्स विल हैव लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी आल्सो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी. तो डेफिनेटली वो इजिली जो है एक एंड से मेम्ब्रेन के एक एंड से दूसरे एंड पे क्रॉस हो जाता है. नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मीन्स इनगल्फिंग. ओके, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ कर लेना, किसी चीज को अंदर इनगल्फ कर लेना. तो एनी मटेरियल, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी ड्रग है, ये भी एक आपका मैकेनिज्म है फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन, बट दिस इज द माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ये आपका माइनर नहीं है, मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज द पैसिव डिफ्यूजन, माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज आपका एंडोसाइटोसिस. जो भी मटेरियल है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है प्रोजेक्शन करता है, प्रोजेक्शन के बाद जो मेम्ब्रेन है उसको एक तरह से कवर कर लेता है एंड इट फॉर्म्स द वेसिकल. ये वेसिकल जो है आपका एक जो है पिंच ऑफ हो जाता है और सेल के अंदर चला जाता है, फाइनली दूसरे एंड पे जाता है, वहां के साथ आपका जो वेसिकल है गेट मर्ज एंड द ड्रग जो है इट इज रिलीज टू द अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. लाइक विटामिन ए है, विटामिन डी, ई, के, व्हाटएवर आपका जो oil soluble vitamins है, they are normally get absorbed by the endocytosis process. अगर आपका मटेरियल जो है सॉलिड मटेरियल इनगल्फ हो रहा है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. इफ इट इज लिक्विड मटेरियल तो हम उसे पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं. ओके, so पाइनोसाइटोसिस एंड पाइनो एंड फैगोसाइटोसिस आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. But here the material, nature of material जो है, nature of drug जो है, that will decide if it is in solid form, then that process will be known as the phagocytosis. If it is in liquid form, then this will be known as the pinocytosis. Okay, so this is for today.
This much is for today. Next time we will take the another topic.